Hello. Kishore! Who? Kishore, you remember me? I'm calling from Bangkok, Pattaya. You're calling from? I am calling from Bangkok. You remember me, Noah? Noah. You remember me, Night? Yes, You are not coming back again. I will. We went to Pattaya together, beach, then hotel. Yes, had lot of fun. Yeah, we lot of fun. Yes. You very naughty. It's okay. It was a lot of Very fun. naughty. How's your family? All well. How are you? You're naughty. You didn't tell me you have a family. You told me later. But I told you later, na? How are you? You remember? I remember you every day and evening. You remember we in hotel? You naughty. Yes. Good hotel, good place. We took photograph. You remember? Yes, lot of photographs. Kissing. Yes, during the kiss. You are very handsome. I always look your photograph. Yeah, that photograph, Rosie, I remember. Rosie, no Nova. Oh, Noah, last trip, huh? Noah, yeah. Yeah. So, yeah. You remember, you know. Yeah. Send me that photograph, na? That we took during kissing. You naughty. Don't know, but I need you're that photograph. naughty. I'm missing you. You want to see me? Yes, I want to see you. I want to remember that moment. You remember hotel? Send me all 52. Beach. Yeah, I remember hotel, tuk-tuk, beach. Tuk-tuk. We were sitting in a tuk-tuk. Yeah, I love you. I also love you. No, just Ah. send the photograph. WhatsApp me right now. I am not WhatsApping you. I am tagging you on Facebook. You will check after 1 minute. I have 52 photographs. Your name is Kishore Jaiswal. I am tagging you right now, one by one. Facebook. No. Let me tagging on tagging Facebook. you naughty. No, Noah, not on Facebook. No Facebook photo. Why? I want to tag you on Facebook. No tagging on Facebook. But I love you. Don't you love me? बोल तो रहा हूँ तेरे को I love you 10 बार लेकिन no tagging. I love you. I love want you, to सच्ची. tag you 1 minute No. after 52. Let me अरे tag you. सच्ची I love you. No tagging. I love you but no tagging. Jaiswal, where is Kishore Jaiswal? Tagging you right now. Oh Noah, सुन ना. Noah, Yes. where are you? You don't love me. Oh, I love you, Noah. I love you from the bottom of my heart. Why not tagging? Oh, no tagging. It is not good. And in India, ban tagging. Everyone is banned on tagging. No one can tag. No one And can tag. person will go to jail. I will not come to Bangkok if you tag. Oh my God. Don't tag. Is she your wife? She's so pretty. Who? The pink suit. No. She's no more. Died. Plane crash accident. So don't tag. Huh? No? No, I'm tagging you. This is so. Oh, no. Don't tag on Facebook. Oh, no, you have Orkut account? No, coat. You create an account on Orkut and tag me there. All 50 photographs. We will watch every day. Okay, come to Bangkok. I will come and spend 5 Don't days you with you. love me? अब कह रहे हैं यार I love. want to talk to you. No, we can't talk right now. Understand? Why? I'm on funeral in my wife na right now. Abhi, so can't talk. You are on funeral. What happened? She told you na accident, plane crash. No, she die. My God. Yeah. This Yeah. is so bad. Yeah. Very bad. You are not alone. I love you. But don't you love me? I love you, yaar. Okay, I'll call you later. Okay. हेलो मैं लाभांशी बोल रही हूँ. मैंने कल ही आपका मैट्रिमोनियल में ऐड देखा था. हाँ जी बस क्या कल ही फिर से बनाया था. हाँ, तो बस मैंने सोचा आपसे बात कर लूँ. बताओ. ठीक है, फिर कल मिलते हैं. ठीक है. वैसे कल मेरा ऑफिस है बट ठीक है चलेगा. मैसेज कर दो कोई दिक्कत नहीं. हेलो. Hi, is that Harish? हाँ जी. I just saw your profile on Matrimonial. हाँ जी. मैं राधिका बात कर रही हूँ और आपकी प्रोफाइल काफी इम्प्रेसिव थी.
थोड़ा अभी 1-2 दिन पहले ना बनाई, तो ठीक है, थैंक यू जी, थैंक यू। Oh, then let's catch up. मैं आपको अपना नंबर भेज देती हूँ और हम मिलके हम एक दूसरे को जान भी लेंगे। जब एनी टाइम एनीवेयर। Okay, thank you, Harish. Nice Oh. talking to you. या सेम हियर। ओके बाय। हेलो। हाय हाय, हरीश बोल रहा हूँ। हाय हरीश, दिस इज अलीशा। आपका एड देखा था मैट्रिमोनियल में। आई थिंक यू लुक रियली गुड। हाँ, बस मैंने ना 1-2 दिन पहले ही बनाया था। कमाल है, मतलब बढ़िया इंटीग्रेशन है इनका ना, रिस्पॉन्स रेट बड़ा अच्छा है। सो कैन वी लाइक कैच अप मीट? हाँ बिल्कुल, आप मुझे जब भी है। हरीश, कैन वी लाइक कैच अप टुमारो प्लीज? या श्योर, नो प्रॉब्लम। हेलो। हाय, इज दैट हरीश? हाँ जी। एक्चुअली आई डोंट नो हाउ टू स्टार्ट। अभी आपका मैट्रिमोनियल पे वो मैंने एड देखा था। हरीश, दिस इज रितिका। हेलो। इज दैट हरीश? हाँ जी। हरीश जुगनी, अभी आपका प्रोफाइल देखा मैंने मैट्रिमोनियल पे। थोड़ा जल्दी बात करने की प्लीज। अच्छा। एक सेकंड बात करने दो ना, पीछे लाइन में आ जाओ ना आप। लाइन में आप लाइन में लगो। अरे मैं भी हूँ। तो आप पीछे जाओ। जल्दी नहीं, बात आप कर लीजिए ना, कितने बजे आए हो यहाँ पे? मैं बहुत देर नहीं, बहुत देर से एक क्या? घंटे से आई हुई हूँ। नहीं, ये कोई बात नहीं अरे है। आराम से लाइन में उधर लगो पीछे। तुम्हें क्यों? मेरी बात करने दो। हरीश है, आपका प्रोफाइल देखा, बहुत अच्छा है। हरीश, अभी किसी से बात तो नहीं हुई आपकी? मैं जुगनी। शर्म नहीं आती, आप लाइन तोड़ लाइन से क्या, मैं 5 बजे नंबर लगा के गई हूँ अपना। हरीश, आप शर्म नहीं आती, आप नहीं लाइन चिल्ला तोड़ क्यों के रही हो आप बहन? लाइन मैंने तोड़ के पहले आई हैं। नंबर लगाया, मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। नंबर लगा क्यों? हेलो भाई, लाइन में आओ, आप इधर आइए। नहीं, मुझे क्यों खींच? हेलो हरीश, हरीश, नहीं, हरीश। पीछे को हटा, दांत तोड़ दूंगी। पहले मैंने फोन किया है। हेलो हरीश, हरीश। क्यों? हेलो हरीश, हरीश, हरीश। हरीश, तू मेरा भाई नहीं है, मुझसे करियो। ये नीचे 7,500 लड़कियां चमकट ना लगाएं, इन पे लाठीचार्ज हो जाएगा, हटाइए इनको। नहीं, हरीश बात सुन, मर जाऊंगी मैं। तू सही पीछे को बैठ के पीछे को नंबर लगा के आओ। नहीं, नंबर लगा के मुझे बात करनी है हरीश। हरीश, मैंने बात की थी। हरीश सुनो, हरीश मुझसे बात करो। हरीश, मेरा चुम्मा ले ले पहले। देख मेरी बात सुन। आप लाइन तोड़ के आई हैं आगे। अच्छा, मेरे बच्चे देख नीचे गिर दब गए। लेके जाइए बच्चों को। मेरे बच्चे दब रहे नीचे पैरों में। बच्चे को लेकर हरीश से बात कर पैरों रही में। हैं आप। हरीश प्लीज मेरे से बात कर लीजिए। हरीश प्लीज भाई मेरे से बात लड़कियों करो। के लिए हरीश, थोड़ी ऐसा- है भाई। हरीश विजय बोल रहा हूँ, आपका भी प्रोफाइल देखा, मेरे को भी अच्छा लगा भाई। हरीश भाई, हमें भी प्रोफाइल अच्छा लगा। नहीं, ये क्या बात है, ये क्या बात है? मतलब आप लेडीज लाइन में जाइए। पहले आप लेडीज लाइन में जाइए। हरीश भाई, आप उनको जानते हो? चंदोसी के वैभव जी को, उनका रिश्तेदार हूँ मैं, हमारी बहन है। हटाइए आप, नहीं, कोई हटाइए, बेशरम कहेंगे। हरीश, हरीश। हरीश देखा कितना अच्छा रिस्पांस मिलता है हमारी तरफ से शादी करने के लिए। नवेद बोल रहा हूँ हरीश, रेडियो मिर्ची से। अरे मेरी बात सुनो। नवेद बोल रहा हूँ, रेडियो मिर्ची से मुर्गा बना रहे थे हम तुम्हारा। हरीश, आई लव यू। अरे मी टू। ड्राइवर बोल रहा हूँ, आपका पिकअप था आज कॉल सेंटर में। कौन बलवान? नहीं मैम, बलवान की तबीयत खराब है, मेरी ड्यूटी तो गई, मेरे रास्ते में जाम आ गए। मैडम मैं कितने बजे की शिफ्ट है आपकी? 10 बजे की शिफ्ट है। तो मेरे को थोड़ा सा समझा दो कि मैं कैसे, मैं पिकअप के लिए आ रहा हूँ, मैं कैसे आना है यहाँ पे? क्या आपने लाजपत नगर में क्या देखा? लाजपत नगर में मैं देखा नहीं है, मैंने सुना है पकौड़े जैसे मशहूर है। आपने लाजपत नगर में 3 C's देखा है? 3 C's पर ही देखा मैंने। अच्छा, फिर आपने लाजपत में होम देखा है? नहीं मैडम, वो भी नहीं देखा है मैंने। टीवी पे देखा है वहाँ का? नहीं मैडम, वो भी नहीं देखा है। भैया आप कहाँ से आओगे? मैं यहाँ से हूँ, वाघा बॉर्डर से जलंधर होता हुआ। महामाया ब्रिज से आएंगे ना? महामाया ब्रिज मैंने नहीं देखा मैडम, ये कहाँ है? आपने दिल्ली में क्या देखा है? लाजपत नगर नाम की एक जगह है, आपने वहाँ पर आना है। वहाँ पे किसी से भी पूछ लीजिएगा 3 C's कहाँ पर है। वहाँ पहुँचने के बाद वहाँ से एक सीधी रोड जा रही है, आप वो सीधी रोड पर आएंगे, आगे जाके आपको एक खंबा दिखेगा, उस खंबे से राइट हो जाएगा, उसी गली में रोकेगा, मैं वहाँ पर आ जाऊंगी। तो ये खंबा मशहूर है, किसे पूछ लूँ खंबा कहाँ पड़ेगा या क्या पूछूं? लाजपत नगर मशहूर है खंबा?
हाँ, आपने ये पूछना है कि लाजपत नगर में 3Cs कहाँ है। खंबे बहुत सारे हैं, वो आपको घुमा देंगे। तो वो आपका खंबा कौन सा है, उसका नाम है कोई? जैसे वो तो नहीं, जैसे एड्रेस खंबे का नाम कुछ नहीं है, आप 3Cs पहुंचिएगा, वहाँ से आपको एक खंबा। बस भाई, जैसे मैं लाजपत नगर में एंटर हो गया, मैं लाजपत नगर में एंटर हो गया, फिर लाजपत नगर में आप एंटर हो गए भाई साहब, हाँ तो जी। आपने वहाँ पे किसी से भी पूछ लीजिएगा कि वहाँ पे 3Cs कहाँ पर है। 3Cs के बिल्कुल सामने। तो ये किससे सीधी पूछना है 3Cs कहाँ पे है? जैसे किसी कोई आदमी है, मतलब किससे पूछूं? भैया आपको कोई भी ऑटो वाला, रिक्शा वाला कोई भी दिख जाएगा, किसी से भी पूछ लीजिएगा। ऑटो वाला कार खंबे के पास मिलेगा? आपको ऑटो वाला खंबे के पास नहीं मिलेगा, आपको ऑटो वाला कहीं भी मिल सकता है। तो आप उनसे किसी क्या से- पूछूं मैं? यार तू क्या कर रहा है यार? हेलो मैडम वेरी गुड इवनिंग, मैं 2 मिनट आपके लेना चाह रहा था। शट अप, कुछ नहीं चाहिए, यहाँ फोन मत करना अब। हेलो मैडम वेरी गुड इवनिंग, मैं आपको ये फोन मना किया तुझे फोन करने के लिए। अब की बार फोन कर लिया ना, टांगे तोड़वा दूंगी तेरी। हेलो cutie pie, how sweet, oh yeah, come baby, how cute. Hello, is anyone there? Hello, oh cutie pie, sweetie, so sweet, so nice. Hello, is anyone there? यस मैडम। Yes. मैडम वेरी गुड इवनिंग, मैं आपको ये बता रहा था, मेरे ही पाला हुआ है सर। मैडम आपके सिर्फ कमीना मैं 2 हरामजादा। मिनट लेना चाह रहा था। हेलो दोस्त, अगली कॉल तू ही कर भाई। हेलो शिवन, मैं बता रहा हूँ, ये लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ, बताओ मुझे 75 का क्या होता है? हेलो। नहीं सर, आप आई एम सॉरी, आप होल्ड करिए सर। मैं स्कूल से बोल रहा हूँ जहाँ बेटा आपका शिवन पढ़ता है। मैं मैथ्स का टीचर हूँ, मैं कभी ऐसे फोन नहीं करता आपको, लेकिन हद हो गई है सर। सर प्यार मोहब्बत अपनी जगह है, लेकिन आपको बताना बड़ा जरूरी था। मैं आधे घंटे से पूछ रहा हूँ 75 से क्या होता है। लास्ट होमवर्क में मैंने लिखा था इनकी डायरी में कि टेबल याद करके आना, टेबल पूछेंगे। सर खेलना कूदना अपनी जगह है, लेकिन इनके फ्यूचर का होगा कि इस चीज को लेकर मैं बड़ा परेशान हूँ। शिवन, तुम्हारे पापा लाइन पे है, अगर इस बार तुमने नहीं बोला ना, मैं सही बता रहा हूँ, पापा से शिकायत करूंगा। आधे घंटा हो गया पूछते हुए 75 का क्या होता है, टेल मी। हेलो यू नो, पढ़ाई लिखाई ये करते नहीं है और इनका फ्यूचर का ख्याल हमें ही रखना है। ये 75 से नहीं बता रहा है सर। कहाँ पे है ये शिविन? ये खड़ा हुआ है और मुस्कुरा रहा है, ये देखिए खड़ा हुआ है, ये हंस मुस्कुरा रहा है, इसकी माँ ने इसको बिगाड़ दिया है। मेरी बात कराइए थोड़ा इससे। यहाँ पे आओ, पापा से बात करो। ये देखिए मुस्कुरा रहा, बात नहीं। मैंने पापा स्पीकर फोन पे, मैंने स्पीकर फोन में डाल रखा है, बात करिए इससे। हेलो शिविन, सर क्या पूछ रहे हैं? तुम्हारी शिकायत मिल रही है मुझे। शिविन, नहीं, मैं 5 मिनट से पूछ रहा हूँ 75 का, और मुस्कुराया जा रहा, बता नहीं रहा है। पापा चॉकलेट ला दो, पापा खिलौने ला दो, पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं रह गया अभी से। नहीं देखिए, इनके फ्यूचर नहीं देखिए मेरी बात सुनिए, मैं इसे पढ़ाना चाहता हूँ, लेकिन इसकी माँ के लाड़ प्यार ने इसको पूरी तरह से बिगाड़ रखा है। नहीं, लाड प्यार करिए, लेकिन कम से कम टेबल तो याद होना नहीं। चाहिए ना। 75 का मैं इससे 1 घंटे से पूछ रहा हूँ। 75 जा इसको जो आता है बिल्कुल पता नहीं क्यों नहीं सुना रहा, इसकी माँ ने बिगाड़ रखा है, पापा की बात सुनता नहीं है ये शिविन। नहीं देखिए सर, मैं कभी ऐसे कॉल नहीं करता, लेकिन मैंने इसलिए देखिए हमारा जमाना था, हम लोगों को बाप एक बार बोलते थे ये करना है तो करना है, और आजकल के बच्चे माँ सारी इनको बिगाड़ के रखती हैं, सारी चीजें इनको सामने ला के दे देती हैं। शिविन क्या पूछ रहे हैं सर? चलो जो पूछ रहे बताओ, नहीं आज घर पे आओ, तुम्हारी पिटाई करता हूँ मैं, बहुत बिगड़ गए हो तुम। नहीं सर, ये बड़ा ये ठीक नहीं है, मतलब हम भी अपनी जगह जब हम पढ़ाई करते थे, एक बार हमारे माँ बाप हमें बैठा देते थे तो हम पढ़ाई टेबल याद करना हो, पहाड़ा याद करना हो, बिल्कुल आराम से करते थे। आजकल की माओ ने बच्चों को पूरी तरह से बिगाड़ रखा है। शिवन, तुम मुस्कुरा रहे हो अभी। 75 का माँ ने बिगाड़ दिया तुम्हें। 75 का पता अरे नहीं तुम्हें? 75 जा नहीं, हमें सारे एक एक पहाड़े याद थे। 75 का पता नहीं सर, बताइए इसको क्या होता है 75 का? 7 कम 7 7 दूनी 15 7 त्रिक 20 7 चौके 35। ये माँ का बिगाड़ा हुआ है ये। कल पूरी क्लास में मैंने ये भी कहा था, चलो 6 का सुना दो टेबल। सारे पूछ रहे हैं 6-7 का क्या होता है शिविन, ये बोल के नहीं दिया। शिविन क्या सुन रहा हूँ मैं? शिकायत आ रही तुम्हारे सर से। 6-7 का तुम्हें नहीं पता? 6-7 शिविन, तुम जब पापा आए घर पे क्यों नहीं? सर इसको बताइए क्या होता है 6-7 का? बताओ बेटा शिविन, सर को 6-7 का क्या होता है बताओ। सर मैं आपसे कह रहा हूँ, आप बताइए इसको क्या होता है 6-7 का? बताओ सर को, सर क्या पूछ रहे हैं तुमसे 6-7 का बताओ। सर मैं आपसे कह रहा हूँ, आप इसकी आंखें खोलिए, क्या बताइए इसको क्या होता है 6-7 का? नहीं तो 6-7 का बताओ सर को। चलो सर मैं आपसे कह रहा हूँ, आप बताइए इसको 6-7 का। बताओ, यही तो मैं इससे कह रहा हूँ बार बार, सर पूछ रहे हैं 6-7 का बताओ क्या होता है। चलो 6-7 का
ये माँ ने पूरी तरह से बिगाड़ दिया, माँ को बिगाड़ा हुआ अच्छा है। हेलो मैडम हाय, मैं शिविन के स्कूल से बोल रहा हूँ। मैडम आई एम सो सॉरी, मैं थोड़ा सा शिविन को अभी पढ़ा ही रहे थे, लेकिन आपसे पूछना चाह रहे हैं 7 8 56 6 5 6 5 30 9 6 54 ओके 8 8 64। आप शिविन की मॉम बोल रही है ना? हाँ, लेकिन आप पूछ क्यों रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं? नहीं आपको नहीं, मैं इनको बताना चाह रहा हूँ। बच्चा अगर बिगड़ जाए तो माँ का बिगाड़ा हुआ है, और होनहार बन जाए तो बाप पे गया है। ऐसे बिगड़े हुए बापों कभी कभी वक्त दिया करो, अपने बच्चों को पढ़ाया करो। थैंक यू सो मच। हेलो नमस्कार जी। नमस्कार, कौन बोल रहा है? सर मैं क्षमा चाहूँगा, मैं आपको फ़ोन कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लगा कि आपको बात करना ज़रूरी है आपसे। सर मैं आपको बताता हूँ, हम एक बार आपके गांव आए थे, बसेना गांव। हाँ जी। तो यहाँ पता चला कि आप खुद एक नेता हैं, एक आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से गांव में आप सोचते भी हैं चीज़ें। तुम बताओ क्या काम है? काम मुझे ये था सर, ये मेरी भी एक फाइट है कि महंगाई ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और मुझे ये पता चला कि आप भी इस बात का, आपको भी समझ है कि महंगाई बहुत हो गई है, और आपने काफ़ी चीज़ें बताई भी हैं कि इन चीज़ों पे असर पड़ रहा है। जो लोग जनों को खाने को ना मिल रहा है, चीजें महंगी होती जा रही हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब तुम कोई भी चीज देख लो, दाल देख लो, दाल पहले ये कहा जाता था कि आदमी जो है दाल रोटी खा लेगा, दाल उसका भी नहीं छोड़ा, दाल रोटी का भी नहीं छोड़ा। जो चीजें वो महंगी हो रही है, जो मजदूरन काम कर रहे हैं ना, उनके हत्ते तो कुछ ना पड़ रहा। नहीं, मैं आपकी बात से इस पे इत्तेफाक रखता हूँ। जो चीज महंगी होनी है वो तो सस्ती कर दे। अब गन्ने के रेट पे वो जो है मिल वाला पैसा नहीं दे रहा। कोई किसी को बीमार हो जाना, इलाज, ये मैं समझ सकता हूँ कि इलाज वाकई में वो सस्ता होना चाहिए। सुनो, जो कि जरूरी है। दूसरी का चीज जरूरी है, जो ये देख लो तुम, ये शिक्षा। अब तुम यूँ देखो कि जो मेरे गांव के ये छोरा हैं, ये जावे हैं दिल्ली, वहाँ जब बतावे 25-30 लाख हो रही है फीस। नहीं, एजुकेशन भी सस्ती होनी चाहिए। मैं इस बात को, आपकी हर बात को मैं मानता हूँ सर। कुछ तो पब्लिक भी जो है ना, वो टीवी देख के पागल हो रही है। नहीं, ये तो है कि महंगाई थोड़ी बहुत लगती है ना, टीवी नहीं, बहुत पागल कर रखा है। देखो महंगाई तो हो रही है, उसमें जो है घर गृहस्थी संभालना भी जरूरी है। अब देखो जैसे मतलब जब महंगाई हो रही है तो भाई लौंडे को पढ़ा लिया ना, उसके बाद लड़की को भी पढ़ाएंगे, फिर कहेंगे खाने को नहीं है। हेलो, हाँ जी नेताजी। हाँ, तो मैं यूँ कह रहा हूँ कि थोड़ी बहुत पब्लिक को भी जो है ना अकल से काम लेना चाहिए। मैंने सोच के तो कुछ और किया था आपको फोन, मैं आपको बिल्कुल सही बताऊं नेताजी। अब मैं आप महंगाई के बारे में बता रहे हैं सर, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि सर महंगाई जो है उससे हर चीज पे असर नहीं पड़ा है सर। कुछ चीजें ऐसी हैं जो नहीं महंगी हुई हैं, सारी चीजें महंगी हो रही हैं। देखिए, मैं आपकी शुरू से बात मानता आ रहा था, लेकिन मैंने कुछ चीजें सुनी तो मुझे लग रहा है कि नहीं, आप गलत कह रहे हैं, कुछ चीजें नहीं महंगी हो रही हैं। अरे भैया, कुछ नहीं सस्ता हो रहा, सारी चीजें महंगी हो रही हैं। कुछ चीजों पे महंगाई का असर पड़ा ही नहीं है नेताजी, मैं आपको बिल्कुल सही बात बता रहा हूँ। मैं तो ये बात कहीं और ले जाना चाह रहा था घुमा के, लेकिन अब मुझे मजबूरन यहाँ ले जानी पड़ रही है, समझ गया? भाई हमारे तो कोई समझ नहीं आ रहा कौन सी चीज ना महंगी हो रही है। सर मैं आपको बता रहा हूँ, आप एक नेता हैं। हाँ, और ये बहुत सारे नेता हैं। सर आप बताइए, महंगाई से नेता पे क्या असर पड़ा है, ये बताइए आप। क्यों नेता असर न पड़ेगा? नेता ना खाता है? नहीं, कीमत बताइए ना आप। मतलब कहाँ महंगाई बढ़ी है नेताजी? आप पहले भी 2 कौड़ी के थे, आज भी 2 कौड़ी के। कहाँ आप ये कह रहे हैं महंगाई बढ़ गई? यार मैं तो इस टॉपिक पे लाने नहीं चाह रहा था, मैं तो सोच रहा था कि कुछ अलग तरीके से कुछ हंसी मजाक होगा। ये तो आपने कमाल कर दिया है यार। आपसे क्या बात करें यार। बोल कौन रहा तू? बोल कौन रहा है सर, आप छोड़िए आप। मैं आ जाऊंगा। हेलो हेलो, हाय, इज दैट सुरजीत? हाँ जी, बोल रहे हैं। या आई एम मार्क, आई एम कॉलिंग फ्रॉम द कैनेडियन एम्बेसी। कौन बोल रहे जी? Hello, this is Mark from the Canadian Embassy. Sir, did you apply for the Canadian visa? कितना जी अप्लाई वीजा मैं तो सोच रहा थी मेरे कागजात में कोई कमी तो नहीं रहेगी किते थोड़ा तुझे कॉल की आज सर जी। बाप बेटा शुक्र है जी, मेरा काम हो गया। मैं आपके I'm sorry sir, I'm going to have to cut you short. I don't really understand what you're saying. I just wanted to tell you that we went through your documents and there's been a little bit of a problem in the paperwork, so I'm afraid we went through your paperwork and unfortunately I want to categorically say that you cannot enter Canada, you can't come to Canada for 5 years. कितने साल? 5 साल? You cannot, sir, unfortunately, you cannot come to Canada for 5 years because of some paperwork issues. जितने वीजा लग गया 5 साल
Sir. ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਮੈਂ Sir. ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਸੀ ਪਲਾ ਕੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਸਰ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਪੁੱਛਦੇ ਜੀ ਤੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਕਦੋਂ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। Listen to me, hello. ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਯਾਰ ਬੇਲੀਆਂ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਯਾਰ ਵੀਰੇ ਦਾ ਭਾਜੀ ਦਾ। Listen. ਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਪੈਕਿੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਖਰੀਦ ਲਿੱਤਾ ਜੀ। ਸ਼ਰੀਕਾ 'ਚ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖ ਲਈ ਸਰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਸਭ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ ਭਾਜੀ। ਓਹ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ। Hello. ਓਏ ਹੋਏ। Listen to me, please listen to me. ਹਾਂ ਬਈ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀਜ਼ਾ ਲਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਜੇ ਕੱਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਰਾਤੀ ਦੀ। ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 2 ਸਾਲ ਦਾ Hello. ਵੀਜ਼ਾ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਨੇ ਸੋ ਲਈ ਜੀ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ ਮਿਹਨਤ Hello. ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ ਉੱਥੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। Sir. ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਪਾਇਆ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਜੀ। 5 ਸਾਲ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਜੀ ਯਾਰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ You don't understand what I'm saying, right? Listen to me. Listen to me. ਮੈਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਉਂਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਛੇਤੀ ਬਸ। ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। 5 ਸਾਲ ਮੈਂ ਜੀ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਜੁਗ ਜਿਉਂਦਾ। Can you understand what I'm saying? 5 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੇਰਾ। Can you understand what I'm saying? Listen to me, please. Hello. Please speak with my colleague who can speak in your language. हेलो सुरजीत जी। ਹਾਂਜੀ ਬੋਲ ਰਹੇ। मैं बोल रहा कनाडा एम्बेसी तो। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ। ਸਰ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ 5 ਸਾਲ ਨੂੰ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਵੀਜ਼ਾ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ 5 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਗਲਤ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਾਈ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਕੰਟਰੀ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਂ ਨੇ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਬਣਾਤਾ। ਇੱਕ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਵਾ ਸਕਿਆ ਆਪਣਾ। ਹੈਲੋ ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਣ ਚ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਇਦਾਂ। तुम्हारे मुंह से एक भी अल्फाज नहीं निकलना चाहिए। मेरी बात सुनना, हाँ? और फोन अगर काटा तो मैं घर पे पहुंचूंगा और घर पे आके तुम्हें समझाऊंगा। एक बात बताओ, शर्म नहीं आती तुम्हें? किस बात के पैसे चाहिए तुम्हें दहेज में? और मैं कह रहा हूं अभी जुबान से एक लफ्ज मत निकालना वरना मुझसे बुरा कोई होगा नहीं। शादी अगर होगी तुम्हारी तो दहेज में पैसे मिले तुम्हें, ये तुम्हारी ख्वाहिश है। दहेज में गाड़ियां मिले, शर्म आनी चाहिए। शर्म। 4-4 घंटे जिम में गुजार देना, कैसी सोच है यार ये? हद तो ये है कि अपने घर में बिना बताए कहीं भी चले जाना। सारे घर वाले छोटे छोटे बच्चे सब घर में बैठे, पूरी आवारागर्दी करना। घर के बड़े बड़े सारे डिसीजन तुम्हारे। तुम्हें शर्म नहीं आती ये सोच के? ये किस तरह की सोच है कि तलाक हो जाएगी तो हो जाए, मेरे पास पैसा है कॉम्पनसेशन हो जाएगा। ये शर्म नहीं आती तुम्हें? प्रॉपर्टी अगर खरीदी जाएगी तो डिसीजन आपका होगा। बच्चे किस स्कूल में पढ़ेंगे ये डिसीजन आपका होगा। आपको शर्म नहीं आती? उसने शादी करी है तुमसे। जरा सोचो, उसका सब कुछ अब तुम हो। तुमसे ज्यादा इस दुनिया में उसका कोई नहीं है। उसके बाद भी रात में घर से निकल जाना, अपने दोस्तों में चले जाना, वहां हैंग आउट करना, फोन करके ना बताना, शर्म नहीं आती? और सबसे गलत बात, मुझे जवाब दो, किस बात का दहेज चाहिए तुम्हें? क्यों चाहिए? खामोश क्यों हो? जवाब दो। मुझे दहेज चाहिए नवेद, क्योंकि मेरी मर्जी। हाँ, घर से बाहर मैं निकलती हूँ बिना बताए, ये भी मेरी मर्जी है। बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, घर के बड़े बड़े डिसीजंस मैं लेती हूँ और ये भी मेरी मर्जी है। और अगर हैंग आउट करती हूँ मैं अपने दोस्तों के साथ तो ये मेरी जिंदगी है, मैं जाऊंगी। कोई रोक सकता है तो रोक ले। मुझे दहेज चाहिए, मैंने अपनी पढ़ाई पे पैसा लगाया है, कोई रोक सके तो रोक ले, मुझे रिटर्न चाहिए। और हाँ, घर के सारे डिसीजंस मुझे लेने हैं बिकॉज आई एम स्मार्ट एनफ।
कोई रोक सके तो रोक ले। और हाँ, तलाक हो जाए तो हो जाए, मेरे पास इतना पैसा है कि कॉम्पेंसेशन चाहिए तो ले ले मुझसे। मुझे अपने आप को फिट रखना है तो मैं गुजारती हूँ 4 घंटे जिम में, कोई रोक सके तो रोक ले। मैं आपको नाम से भी नहीं बुलाना चाहता, क्योंकि नाम नहीं, मैं पहचान बताना चाह रहा हूँ दुनिया को। अफसोस की बात पता है क्या है? हाँ? जब आपने फोन उठाया था और जब तक आपकी आवाज नहीं आई थी, ये जितने सुन रहे हैं, मुझे बड़े अफसोस की बात है कि 90% लोगों को ये लगा कि मैं एक लड़के को समझा रहा हूँ। पता नहीं क्यों हमारी ज़हनियत ऐसी बनी हुई है कि दहेज सिर्फ लड़का ही मांग सकता है। पता नहीं क्यों हमारी ज़हनियत ऐसी बनी हुई है कि रात को घर से बाहर लड़का ही जा सकता है ना? पूरा यकीन है कि जब तक आवाज नहीं सुनी थी आपको ये लग रहा था कि एक मैं लड़के से बात कर रहा हूँ। क्यों? बिल्कुल। ये किसी ने ये डिसाइड तो नहीं कर दिया है कि ये सारे लड़के ही काम करते हैं। ये लड़कियों के भी काम है और लड़कियों के काम ज्यादा बेहतर लगते हैं मुझे। तो एक चीज मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, दुनिया में कोई चीज ऐसी हो रही हो जो आपको अजीब से लगे और अजीब अंदाजे लगा के आप ये सोचें कि ये तो लड़की होगी, आपसे ज्यादा जाहिल और आपसे ज्यादा कमजोर इंसान कोई हो नहीं सकता। बिल्कुल। ये हमारी मजबूती है, हमारी स्ट्रेंथ है और इन्हीं से चलती है दुनिया। और ये मैं सिर्फ आज ही के दिन की बात नहीं कर रहा हूँ कि आज विमेंस डे है, असल में हर दिन इनका है, हर दिन हम सबका है, तो हम क्यों अलग कर देते हैं यार? एंड नवेद, हम ऐसे ही हैं, ऐसे ही सोचते हैं और ऐसे ही करते रहेंगे। कोई रोक सके तो रोक ले। हेलो मिस्टर राकेश, मैं आप ही की कंपनी के HR डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ। कल एक मीटिंग है, ठीक है, सेल्स का PPT बनाना है इस महीने का मुझे, तो आप कल मेरे ख्याल से 9:30 बजे तक ऑफिस आके ना मेरे साथ ये PPT मुझे दिखा देना कि आप सेल्स में कैसे PPT बना रहे हैं, ठीक है? सेल्स में? नहीं, सेल्स का थोड़ी ना है, मैं तो अकाउंट्स में हूँ। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, मैं HR से बोल रहा हूँ ना, आप मेरे को ये मत बताइए कि आप किस में हैं। मैं PPT कैसे बना सकता हूँ सेल्स का? मैं तो अकाउंट्स में हूँ। मिस्टर राकेश, मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा, मैं आपको ये बता रहा हूँ कल PPT बनाना है आपको, सेल्स का काम करना है तो करना है, समझ गए? आपको सर समझने में क्यों नहीं आ रहा? मैं सेल्स में नहीं हूँ, मैं अकाउंट्स में हूँ और मैं सेल्स का कैसे बना सकता हूँ? कैसा लग रहा है आपको जब इतने बड़े होके नहीं सहा जा रहा? एक 17 साल का बच्चा जिसपे जबरदस्ती आपने ये थोप दिया कि साइंस ही लेनी है। आपके बेटे अबीर ने आपकी बात रख भी ली और साइंस ले भी ली। अब पिछले 15 दिन से उसको खौफ में डाल रहे हैं कि अगर 95% से कम आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आपको एहसास हुआ जब कोई काम जबरदस्ती थोपा जाता है तो कितना अजीब सा लगता है? राकेश जी, ये तो मेरे लिए अजीब सी बात है कि एक बाप को मैं ये समझा रहा हूँ कि अपने बेटे को किस तरह रखें, लेकिन आपके बेटे का जब मेल मिला था मुझे, आप फोन मत काटिएगा प्लीज, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। आपके बेटे अबीर का मुझे मेल मिला था और उसने एक एक चीज लिखी थी। आपकी मोहब्बत में, आपकी इज्जत में उसने साइंस ले ली। हालांकि वो कहता रहा कि मुझे आर्ट्स दिलवा दीजिए ताकि अच्छा स्कोर कर लूं मैं। एग्जाम्स में इतना प्रेशर अपने बच्चे पे डालना जो अपने मर्जी के सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ रहा, आपके कहने पे पढ़ रहा है, और फिर ये कहना कि 95% से कम आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं सारे माँ बापों से कहना चाहता हूँ कि आपको अगर लगता है कि आपकी औलादों के 60% मार्क्स बहुत कम हैं और आपको अफसोस होता है, तो ये सोच के क्यों नहीं खुश होते कि आपकी औलाद इस लायक तो है कि वो एग्जाम में बैठ सकती है? ये दूसरे बच्चों से कंपेयर करना किसी भी माँ बाप के लिए ये बहुत गलत है। आप सिर्फ इस चक्कर में कि आपके पड़ोस में इनके बच्चे के एग्जाम्स में इतने % मार्क्स आए, इस चक्कर में यही भूल जाते हैं कि आपके बच्चों में क्या क्या खूबियां हैं। ये कोई नहीं कह रहा आपसे कि आप अपने बच्चों को ना पढ़ाएं, जरूर पढ़ाइए उन्हें, लेकिन इतना प्रेशर मत डालिए। आई एम सॉरी, मैंने आपसे पहले आपके बेटे अबीर से बात करी थी और ये 5 मिनट की बातचीत में सबसे खूबसूरत चीज मुझे ये लगी कि आपका बेटा बहुत अच्छा गाता है। ये जरा सुनिए, मैंने रिकॉर्ड किया हुआ, इसे जरा ध्यान से सुनिएगा। अच्छा एक बात बताइए, आप गाना सुना सकते हैं मुझे? हाँ, मैं सुना सकता हूँ। जी सुनाइए। रोम रोम तेरा नाम पुकारे, एक हुए दिन रैन हमारे, हमसे हम ही छिन गए हैं, तब से देखे नैन तिहाए सजना, फिर ले आया दिल मजबूर, क्या कीजे रात न आया रहना दूर, क्या कीजे दिल कह रहा फिर से मुकम्मल ले आओ, ये जो अधूरी सी याद बाकी है। आई नो इस दुनिया के कोई भी माँ बाप ऐसे नहीं है जो ये चाहें कि उनकी औलादों का फ्यूचर खराब हो जाए। आज रात जब आप घर जाएं तो अबीर को अपने पास बुलाइएगा, जरूर पढ़ाइए उसे।
लेकिन एक बार ये खुद कहिएगा कि जरा मुझे कुछ सुना के दिखाओ, आपका दिल खुश हो जाएगा और आप चिपटा लेंगे उसको। और ये गाना सुनने के बाद उसके पीठ पे थपथपा के कहिएगा कि गुड लक, तुम्हारे जैसे भी मार्क्स आएंगे मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छे आएंगे, आराम से पढ़ो। हाँ, मैं आज ही बात करता हूँ अभी से। प्लीज उससे बात करिए और उसे समझाइए और प्यार करिए खूब यार, आप ही का बेटा है, उसे डांट भी दीजिए कभी कभी, लेकिन समझिए उसको। हाँ बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपका समझने के लिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय बाय। हेलो कर्नल सुभाष, मैं आपके 2 मिनट चाह रहा था, आपके पास टाइम है थोड़ा सा? यस बोलिए। कर्नल सुभाष, आप अभी कहाँ पे हैं, कहाँ पे आप पोस्टेड हैं? मैं पंजाब के बॉर्डर पे हूँ, मैंने आपको पहचाना नहीं। कर्नल सुभाष, आपको बस मैं ये नहीं बताना चाह रहा कि मैं कौन बोल रहा हूँ, आप वापस आ जाइए। क्यों भाई? कर्नल सुभाष, बेकार में खड़े हुए हैं आप इसीलिए खड़े हुए हैं ना कि हमारे मुल्क में सुकून रहे, हमारे मुल्क के लोग खुश रहे, अमन शांति से रहे, कोई दूसरे मुल्क का इंसान आके यहाँ पे सुकून खत्म ना कर दे। कर्नल सुभाष, आप बिल्कुल बेकार में खड़े हुए हैं, इसलिए कह रहा हूँ आप वापस आ जाइए यार। नहीं, तू कौन होता है भाई, तू मेरे को वापस बुलाने वाला? इसलिए कर्नल सुभाष, इसलिए कि दूसरे वाले हमारे अंदर आके सुकून खत्म करेंगे, ये बाद में होगा। कर्नल सुभाष, हमारे अपनों ने ही सुकून खत्म कर रखा है। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आई एम सॉरी, आप अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं वहां खड़े होके। अब मेरी बात सुनिए कर्नल सुभाष, फोन डिस्कनेक्ट मत करिएगा, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, हमारे मुल्क में पिछले कई दिनों से हिंदुस्तान सुकून में नहीं है। अपने ही लोगों ने कसम खा रखी है कि इस देश को, इस वतन को बेसुकूनी में बदल देंगे। हमारे यहाँ ऐसे ऐसे लोग हैं जो अपने ही लोगों का नुकसान करते हैं, अपने ही लोगों की प्रॉपर्टी जला देते हैं। कर्नल सुभाष, हमारे यहाँ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो ये नहीं समझते कि चिल्लाने से, नारे लगाने से कुछ हासिल होता नहीं, क्योंकि कर्नल सुभाष, अगर उनको कुछ लोग एंटी सोशल कहते हैं, एंटी नेशनल कहते हैं, तो वो लोग जो अपने आप को नेशनल कहते हैं कर्नल सुभाष, वो अपने ही लोगों को मार देते हैं, अपने ही लोगों की पिटाई कर देते हैं कोर्ट में घुस के। कर्नल सुभाष, सुकून यहाँ नहीं है, आप जहां खड़े हुए हैं वहां तो सुकून है। मैं कई दिनों से ये देख रहा था कि हमारे हिंदुस्तान को हो क्या गया। कर्नल सुभाष, आप जैसे लोगों की इतनी इज्जत करता हूं मैं, पूरा हिंदुस्तान इज्जत करता है, लेकिन कभी कभी हालात ऐसे बन जाते हैं कि हम सोचते ही नहीं। आप कितनी बड़ी कुर्बानी दे रहे हैं, वहां पे खड़े हुए हैं अपने परिवार को छोड़ के, इसलिए कि हम लोग हिंदुस्तान में सुकून से रह सके। हिंदुस्तान से अगर किसी दिन पूछेंगे ना कि असल में तुमसे मोहब्बत कौन करता है, तो हिंदुस्तान भी शायद शर्मिंदा हो जाए और सोच में पड़ जाए कि असल में मेरा है कौन। कर्नल सुभाष, एक बात ये भी समझ में नहीं आती कि अगर कोई गुस्सा दिखा रहा है और किसी की दुकान जला दी या किसी का मकान जला दिया, किसी की गाड़ी जला दी, कुल मिला के हिंदुस्तान की करेंसी का ही नुकसान किया है। अगर कॉलेज के लड़कों ने रोड जैम कर दिया तो वो ये क्यों नहीं समझते कि वो हिंदुस्तान का ही आदमी है जो उस जैम के चक्कर में पिछले 8 घंटों से एम्बुलेंस में फंसा हुआ है और एक एक सांस मुश्किल से ले रहा है कि मैं हॉस्पिटल पहुंच जाऊं। अगर कुछ लोग ये कहते हैं कि जेएनयू के स्टूडेंट्स जो हैं वो एंटी नेशनल हैं, तो जो लोग उनको मार रहे हैं वो कैसे नेशनल हो गए? क्योंकि एक हिंदुस्तानी को ही मारा आपने। ये भी समझ में नहीं आता कि जो लोग ये कह रहे हैं कि हम टॉलरेंट हैं बहुत ज्यादा, 2 ही घंटे के बाद वो खुद चिल्लाने लगते हैं, किसी को मारने लगते हैं। मैदान की तो जरूरत भी नहीं पड़ती अब जंग के लिए कर्नल सुभाष। ये बहुत बड़ी चीजें हैं सोशल मीडिया, इसी पे जान लेने और मार देने की कस्में खाई जाती हैं और होते हिंदुस्तानी ही हैं। 1947 में हमें आजादी मिली थी ये सोचने के बाद कि अब तो सुकून से हैं, अब तो सब एक हैं। हमें क्या पता था कि हालात ऐसे हो जाएंगे कि कोई किसी को नहीं समझेगा। कर्नल सुभाष, आपके अलावा कुछ लोगों की और जिम्मेदारी है कि हमारे मुल्क में सुकून, अमन और शांति कायम रखें, जिसमें से बहुत बड़ा हिस्सा मीडिया का भी होता है। कभी कभी उन्हें देखने के बाद ऐसा लगता है कि ये वतन के लिए नहीं, ये वतन से ही लड़ पड़े। एक और चीज, रहते तो हम हिंदुस्तान में हैं, लेकिन आज भी हम ढूंढते हैं हिंदुस्तानियों को। नवेद, हम अपने मुल्क की खातिर इधर सरहद पे खड़े हैं कि हमारे मुल्क के बाशिंदे सुकून से, आराम से, चैन से रहें, तरक्की करें। ये रिजर्वेशन का मामला, ये मजहब का मामला, ये उस मजहब का मामला, जेएनयू का मामला हो, ये आपस में अलगाववाद ठीक नहीं है। मिलजुल के प्यार मोहब्बत से रहो। हम तुम्हारी रक्षा करने के लिए सरहद पे खड़े हैं, तुम हमें चैन सुकून दो ताकि हम अपने घर वालों के बाद मेल मिलाप करने के लिए टेलीफोन से बात कर सकें, सड़क से आ सकें, ट्रेन से आ सकें। हमारे बाशिंदों के, हमारे फौजियों की डेड बॉडी तक नहीं जा सकी जींद में उसकी पौन की। नवेद, मैं यहाँ सरहद से अपनी वाइफ से बात करता हूँ हफ्ते में 1 दिन जी, और मेरे को जो सुनने में मिलता है कि फलानी जेएनयू यूनिवर्सिटी में छात्रों ने आंदोलन कर दिया, फलाने रिजर्वेशन की वजह से हरियाणा में आगजनी कर दी, तो ये सुनकर बहुत दिल को दुख होता है। कर्नल सुभाष, मुझे बड़ा अफसोस है इस बात को कि इतनी लड़ाइयां तो बॉर्डर पे नहीं हो रही सरहद पे, जितनी ये मुल्क के अंदर हो रही हैं, और सबसे अफसोस की बात ये कि आपस में लड़ रहे हैं। थैंक यू सो मच कर्नल सुभाष, और मैं आपसे माफी चाहूंगा अगर आपको जरा से भी बुरा लगा हो, क्योंकि मैंने शुरू में आपसे थोड़ी सी गलत बात करी, लेकिन मुझे लगा कि ये तरीका ठीक है और मुझे ये मालूम है कि आप वहाँ पे बहुत बड़ी कुर्बानी दे रहे हैं। थैंक यू सो मच नवेद, जय हिंद, जय हिंद।